Good morning, student. In first part of the separation of substances, we have already discussed about the different method of separation of substances like hand picking, threshing, winnowing, sieving, and sedimentation. Few examples are also here on this page about sedimentation, okay, as well as decantation. So when we try to separate a mixture of sand with water, first of all we put this mixture in a beaker and left it undisturbed for few hours. All suspended sand particles which are heavier than water get settled down. This process is known as sedimentation, like this. Okay, this is the mixture of sand and water. Now sand form a layer in beaker and this layer is known as sediment. Now we separate out the clean water which is upper part of this mixture by pouring this clean water into another beaker without disturbing the settled sand particle. Okay, next, in our house, rice and pulses always rice and pulses rice and pulses always wash before cooking. Okay, in our home rice and pulses contain very fine particles in them. These particles when washed in water, these all dust particles go into the water and water become dirty. Now this dirty water is separated by decantation. Decantation means pouring out this dirty water into another pot, whereas rice and pulses form sediment at the bottom of pot or vessels. You can also separate the mixture of oil and water. These two are insoluble liquid, they do not mix up together, they form generally two layer. Upper layer is of water and oil and lower layer forms of water because water is heavier than oil. So we can separate out this upper layer of oil into another pot by decantation process. Okay, now next separation process is filtration. Filtration filtration, it is the process of removing insoluble solid from liquid by using filter. This is known as filtration. Insoluble solid when dissolved या suspended in liquid, you can separate out it by filter paper या any kind of filter. The liquid passes through the filter because filter have very minute pores या holes through which liquid passes out and they form filtrate. The insoluble solid materials left behind
as a residue in filter paper. This process is known as filtration. फिल्टर में भी आप फाइन क्लॉथ, हम महीन कपड़े का भी फिल्टर बना सकते हैं। फिल्टर पेपर भी आता है, कॉटन वूल के भी फिल्टर पेपर हो सकते हैं या फिर फिल्टर बना सकते हैं। स्ट्रेनर होता है, आप देखे होंगे, चाय टी लीव, प्रिपेयर लीव से टी लीव्स को निकाला जाता है तो उसमें स्ट्रेनर यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर इज आल्सो अ काइंड ऑफ filter, as well as sand bed is also act as a filter. So many kind of material may be used as a filter for filtration process. Okay, suppose in our house tea leaf are separated from prepared tea liquid with strainer. Actually liquid of tea passes through the small hole of स्टेनर्स। सुबह चाय बनता है तो स्ट्रेनर से हम सारे सॉलिड मटेरियल को, जो टी लीव्स होते हैं, उसको अलग कर लेते हैं और लिक्विड को नीचे ले लेते हैं जिसको हम पीते हैं। तो टी लीव, प्रिपेयर्ड टी इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ टी लीव एंड सम अदर कंपोनेंट्स लाइक इलायची या शुगर, एनी मिल्क. So this is also a mixture. So using strainer we can separate out the solid tea leaf from liquid tea. Okay, here solid tea leaves are not useful for us, that is why we have to separate out this. Okay, next we will obtain clear water फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर. इस समय बरसात हो रहा है, आप देखते होंगे कि जो वाटर है चाहे नदी में हो चाहे रोड साइड पर बह रहा हो, वो मडी वाटर है. तो हाउ यू कैन सेपरेट आउट? तो दिस मडी वाटर विल बी सेपरेट आउट बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन में ज़्यादातर हम लोग फिल्टर पेपर यूज करते हैं. तो देखिए फिल्टर पेपर का डायग्राम दिया हुआ है. वैसे फिल्टर पेपर स्कूल में है. फिल्टर पेपर ये सफ़ेद गोले तरह का है, इसको हम कोन में कन्वर्ट कर लेंगे, फोल्ड करेंगे, कोन बना लेंगे. ये कोन है, ठीक है. उसके बाद इसको जो फनल स्टैंड होता है, ये फनल स्टैंड है, दिस इज़ फनल स्टैंड. फनल स्टैंड पर अब कोन को फनल में रख लेंगे. उसके बाद नीचे एक बीकर लगा देंगे जिसमें कि क्या होगा, सारा लिक्विड जो क्लीन वाटर है वो स्टोर होगा और जो मडी पार्ट है, मड है, क्ले पार्ट है, जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ये सारे फिल्टर पेपर में आ जाएंगे. तो नीचे क्लीन वाटर को कहते हैं फिल्ट्रेट और जो सॉइल या क्ले का पार्ट है उसको कहेंगे हम रेसिड्यू, जो कि कोन, फिल्टर के कोन में आ जाएगा. तो दिस मडी वाटर हैव insoluble fine clay particle. So this muddy water, when we keep it undisturbed for overnight, all clay particles suspended in water settle down at the bottom and then we pour out the clean water with help of filter paper. Okay, now you have been also observed that a fruit juice seller also use strainer to filter the juice of fruit या vegetables. So fruit and vegetables juices are usually filtered before drinking. आप देखे होंगे गन्ने का जूस हो या आपने देखा होगा मौसम्मी का जूस या अदर फ्रूट्स के जूस, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पल्प, सॉलिड पार्टिकल्स लाइक पल्प. तो इसको हम स्ट्रेनर से, स्ट्रेनर एक फिल्टर है, छननी है, जिससे हम उसको अलग कर लेते हैं. तो सारे
जो पल्प के सॉलिड पार्टिकल हैं वो अलग हो जाएंगे और जूस नीचे आ जाता है, ग्लास में आप पीते हैं। तो दिस पल्प या सॉलिड पार्टिकल ऑफ फ्रूट या जूस is harmful for us, that is why we have to separate out it. So generally filtration process is used in our day to day life. घर में पनीर कभी कभी बनाते हैं, दूध को गर्म करते हैं और उसमें नींबू डाल देते हैं। तो नींबू डालने से क्या होगा, दूध जो है वो फट जाएगा और उसमें जो फैट है वो वाटर से अलग हो जाएगा। तो अब हम इस फैट को अलग करने के लिए क्या करते हैं, फैट को अलग करने के लिए एक कपड़े का, सूती के कपड़े में इन सारे मिक्सचर को, जो दूध का लिक्विड है और फैट है, सॉलिड पार्टिकल है, उसको बांध करके रख देते हैं। धीरे धीरे वाटर सारा फिल्टर आउट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ filtration. For making paneer, a few drop of lemon juice are added to hot water. This give a mixture of fat particle and solid paneer and liquid. Cheese is then separated by filtering the mixture through fine cloth. Okay. Next process of separation of mixture is evaporation. Evaporation is the process where liquid change into vapor या gaseous form at any temperature. Either they are at boiling point, evaporate at boiling point, या below the boiling point. So evaporation will occur. Okay. The changing of a liquid into its vapor या gas at any temperature is called evaporation. Okay, so evaporation is used to obtain a solid substance that has dissolved in water या any liquid on heating या without heating. Okay, तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम अपने डेली लाइफ में इवेपोरेशन यूज़ करते हैं। ओके, जैसे देखिए, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर, बट ऑन हीटिंग इवेपोरेशन विल बी फास्टर. ओके, सो इवेपोरेशन may be take place at any temperature, but evaporation will be faster when we heat it. जैसे आप हाथ धोते हैं, आपके हाथ से सारा पानी गायब हो जाता है एयर में, या आप गीले कपड़े को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। बाय इवेपोरेशन प्रोसेस ऑल वाटर escape from your cloth material to the environment through evaporation process. Without, you cannot heat it, but cloth absorb heat from surrounding and liquid water convert into water vapor and go into the atmosphere. नेक्स्ट देखिए, जैसे इस प्रोसेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए कॉमन साल्ट, नमक जो है वो वाटर में डिसॉल्व है, तो इसको आप कैसे अलग करेंगे। हाउ यू कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट विथ वाटर। बाय सिंपल इवेपोरेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट आउट द सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन साल्ट फ्रॉम वाटर. ओके, अब इसमें करेंगे क्या, मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड वाटर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड जेंटली. हम वाटर और कॉमन साल्ट के मिक्सचर को चाइना डिश में लेंगे जो गर्म होने पे टूटेगा नहीं, और हल्का हल्का उसको गर्म करेंगे. ठीक है, तो क्या होगा, वाटर प्रेजेंट इन साल्ट सोल्यूशन विल फॉर्म वाटर वेपर. जो साल्ट सोल्यूशन में वाटर है वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म करेगा और बाहर होता जाएगा, वाटर वेपर, एंड इस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. ये सारा वाटर धीरे धीरे वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एंड लिविंग बिहाइंड साल्ट इन चाइना डिश एज अ सॉलिड. सो
Actually, salt is a solid which is not vaporized at 100 degrees Celsius. That is why salt is remain in China dish as a solid, but water vaporize and even boil at 100 degrees Celsius and goes to the atmosphere, leaving behind the solid salt या common salt. So by the process of evaporation, we easily separate the common salt from water. वाटर एंड कॉमन साल्ट का ये एक मिक्सचर है, क्योंकि साल्ट भी एक प्योर सब्सटेंस है और वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है. ओके, अब जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिल जाते हैं तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं. आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जाम्पल. कभी आपने सोचा है कि जो हम साल्ट लेते हैं, जैसे टाटा साल्ट है या डांडी साल्ट है या जो भी साल्ट है आप परचेज करते हो, वो कहाँ से आता है? दिस साल्ट या कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन प्रोसेस, बिकॉज अवर सी कंटेन नियरली 70% ऑफ salt which is a sodium chloride, and it also dissolve different kind of salt, but nearly 70% salt is sodium chloride. There is so many reason why sodium chloride concentration is more in sea water. ये हम हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं कि क्यों उसमें सोडियम क्लोराइड ही ज़्यादा बच जाता है और दूसरे साल्ट क्यों नहीं बचते. ओके, सो अब इसको हम साल्ट को कैसे अलग करेंगे सी वाटर से. तो देखिए इसमें क्या है, जो सी शोर वाले इलाके हैं जैसे गुजरात है, राजस्थान में भी सांबर लेक है जो एक तरह से साल्टी वाटर है, उसमें उड़ीसा के कुछ इलाके हैं, वहाँ भी जो सी शोर वाले इलाके हैं वहाँ पर क्या करेंगे, सी वाटर को हम एक सैलो पिट बनाते हैं, उथले हुए खेत नुमा एक पिट बनाते हैं और उस पानी को रख देते हैं. अब क्या होगा, वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट. सनलाइट से वाटर धीरे धीरे गर्म होता है एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर. धीरे धीरे सारा वाटर वेपर गायब होने लगता है सन के हीट से थ्रू इवेपोरेशन. इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, इन अ फ्यू डेज वाटर इवेपोरेट कम्प्लीटली. कुछ दिनों के बाद सारा वाटर गायब हो जाता है. ओके, and leaving behind the solid salt in that shallow pit. अब सारा साल्ट उस सैलो पिट में रह जाता है और पानी उड़ जाता है, तो हम फिर साल्ट को रिकवर कर लेते हैं. वैसे वो जो साल्ट आप रिकवर करते हैं वहाँ से सैलो पिट से, वो इम्प्योर साल्ट होता है, उसको भी प्यूरिफिकेशन किया जाता है. और प्यूरिफिकेशन करने का एक अनदर मेथड है, and this method is known as crystallization. तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. So common salt is obtained from this mixture of salt and water, okay, by this process. And now common salt is obtained from the mixture of salt is further purified by crystallization process. Okay, crystallization process is not in your syllabus, that is why I am not going to discuss about this. Okay, next है process condensation. So condensation is what, आप देखे होंगे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. ओके, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस को आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. Actually this process is going on when temperature is low. Okay, so conversion of water vapor या any liquid into its liquid form is known as condensation. Okay, next देखिए, till now अभी तक हमने पढ़ा कि डिफरेंट वे ऑफ या मेथड ऑफ सेपरेशन हैज़ बीन यूज टू separate out the component of mixture, but actually any one kind of process of separation is not sufficient.
often one method is not sufficient to separate the different components present in a mixture. ओके, केवल एक मेथड से हम सारे कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंट कंपोनेंट के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम एक या एक से ज़्यादा सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। अभी तक जो हमने यूज़ किया था उस मेथड में कई मेथड को मिला करके और सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे, क्योंकि एक मेथड पूरी तरह से सब्सटेंसेस को अलग करने में हेल्पफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे लीजिए आप सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड। आपके पास साल्ट और सैंड का एक मिक्सचर दे दिया जाए तो आप कैसे उसको अलग करेंगे? हाउ यू कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड। तो हम इसमें दो तीन बातें समझेंगे। जो साल्ट है, साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर बट सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। साल्ट जो है वो वाटर में पूरी तरह से डिसेपियर और घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन सैंड डिजॉल्व नहीं होता। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सम वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, या हम एक बीकर में पानी ले लेंगे और सैंड और साल्ट को डाल देंगे। देन व्हाट विल हैपन, और इस मिक्सचर को हम स्टायर करेंगे, चम्मच से घुमाएंगे, तो क्या होगा? साल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व एंड डिसेपियर इन वाटर। साल्ट जो है वो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, बट वेयर एज सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम बिकॉज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सैंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए सैंड नीचे बैठ जाएगा। अब क्या करेंगे हम? सैंड कैन बी सेपरेटेड आउट बाय डिकंटेशन। अब हम सैंड को डिकंटेशन करेंगे, वाटर को, जो क्लीन वाटर है ऊपर, उसको पोर करके अलग कर देंगे और सैंड जो नीचे बैठा हुआ है उसको रहने देंगे। अब हो सकता है उस वाटर में कुछ फाइन पार्टिकल सैंड को हो, तो हम फिर क्या यूज़ करेंगे? नाउ वी यूज़ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उस लिक्विड से फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सारा सैंड को रिकवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने दो प्रोसेस यूज़ कर लिया, या कह लीजिए तीन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, दो प्रोसेस यूज़ किया। अब हम इसमें क्या हुआ, वाटर में अब साल्ट डिजॉल्व है, सैंड को हमने अलग कर लिया है फिल्टर पेपर से या डिकंटेशन से। नाउ साल्ट एंड वाटर फॉर्म अ डिकेंटेड लिक्विड नीड टू बी इवेपोरेटेड बाय हीटिंग इन चाइना डिश। अब देखिए, जो साल्ट वाटर में डिजॉल्व है उसको हम चाइना डिश में रख करके गर्म करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को? दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। व्हेन वी हीट द चाइना डिश हैविंग salty water, all water evaporate and salt will be leaving behind in China dish. सारा वाटर एज अ स्टीम या वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और आपको क्या मिल जाता है? साल्ट चाइना डिश में। तो अब अगर आप चाहें कि वाटर को रिकवर करना चाहें, जो वाटर इवेपोरेट हुआ है उसको आप फिर से लेना चाहें, तो कैसे करेंगे? देखिए, वाटर वेपर विच इज इवेपोरेटेड ड्यूरिंग इवेपोरेशन विल बी रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। एक हम मेटल का पॉट लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे कुछ ठंडा, जैसे बर्फ। उस बर्फ के कारण क्या होगा? वाटर वेपर जो स्टीम के रूप में बन रहा है वो उससे जा कर के ठंडा होकर के फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर या स्टीम इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। तो
to separate mixture of salt, water and sand, we have here use decantation, filtration, evaporation and condensation. मतलब साल्ट, वाटर और सैंड के मिक्सचर को अलग करने के लिए हमको 4 प्रोसेस यूज़ करना पड़ गया। कौन कौन सा? डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो बाय यूजिंग ऑल these 4 processes we finally separate out the component of mixture of salt, water and sand. Okay, next देखिए हम अब कहेंगे कि क्या सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। एक्चुअली देयर आर different kind of solution, solid solution, liquid solution and gaseous solution, but at this level, at 6th level, we only talk about the liquid solution. Here जैसे आप when you dissolve salt in water, it form a homogeneous mixture that is known as solution. Here solution is prepared by dissolving a substance. Solution is prepared by dissolving a substance या many substance like solid, liquid, gases in a liquid. Okay, तो जैसे आप नमक को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो नमक डिसअपियर हो जाएगा और ये क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। इसी तरह शुगर को वाटर में डालेंगे तो ये भी एक सॉल्यूशन बना लेगा। और कई गैसेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइक ऑक्सीजन गैस इज आल्सो डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। ओके, तो हम यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। हियर द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सब्सटेंस लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है उसको सॉल्यूट कहते हैं। वेयर एज लिक्विड इन विच दिस सब्सटेंसेस आर डिज़ोल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। ओके, तो जो जैसे मान लीजिए हमको साल्ट वाटर में डिज़ोल्व करना है तो साल्ट को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। और वाटर क्या है? ये सॉल्वेंट है। ओके, एक्चुअली ये डिफिनीशन एक अलग टाइप का है, आपके लिए अलग है, लेकिन हायर क्लासेस में क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज लोअर इन अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट एंड दोज कंपोनेंट विच इज लार्जर इन अमाउंट आर नोन एज सॉल्वेंट। तो जैसे हम साल्ट थोड़ा सा डालते हैं उसकी मात्रा कम है और वाटर ज़्यादा रहता है तो उसकी मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कई तरह के सॉल्यूशन हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम आपके इस स्टैंडर्ड पर केवल सेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। व्हाट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन? A saturated solution is one in which no more, a saturated solution is one in which no more of that substance, yeah, that is solute can be dissolved at a room temperature. तो एक saturated solution is one in which no more of that of substance can be dissolved एट अ रूम टेम्परेचर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब ज़्यादा हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा डिज़ोल्व करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, वाटर के नीचे बैठ जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेते हैं, ओनली 36 ग्राम ऑफ साल्ट, केवल 36 ग्राम साल्ट जो कि सॉल्यूट है, ओनली 36 ग्राम ऑफ साल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर नियरली 25 डिग्री सेल्सियस पर। केवल 36 ग्राम 100 ग्राम वाटर में हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे ही 36 ग्राम से 37 ग्राम करेंगे तो वो 1 ग्राम नीचे बैठ जाएगा। ओके, तो ये 36 ग्राम जब 100 ग्राम वाटर में आप डिज़ोल्व करते हैं रूम टेम्परेचर पर तो ये एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। ओके, अगर हम इसमें ज़्यादा डिज़ोल्व करना चाहते हैं, मान लीजिए 1 ग्राम और ज़्यादा या 2 ग्राम और ज़्यादा, 37 ग्राम करना चाह रहे हैं, 1 ग्राम और ज़्यादा डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? या तो वाटर को बढ़ा दें,
वाटर की क्वांटिटी बढ़ाएं, लेकिन हमको वाटर क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, तब क्या कैसे होगा? तब हमें उस सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ेगा। इफ़ वी ट्राई टू एड सम मोर, देखिए अब, इफ़ वी ट्राई टू एड सम मोर साल्ट इन दिस वाटर, द एक्सेस साल्ट विल रिमेन अनडिजॉल्व। ज़्यादा जो साल्ट है वो अनडिजॉल्व होकर के नीचे बैठ जाएगा, रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल डाउन इन पॉट में बैठ जाएगा। तो वी कैन डिजॉल्व दिस एक्सेस ऑफ साल्ट इन एबव केस बाय हीटिंग दिस सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम किसी सेचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर दें तो उसमें और ज़्यादा साल्ट डिजॉल्व हो सकता है, या कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। तो ऑन हीटिंग, dissolving power of solvent will be increase, या you can say more and more salt can be dissolved in a liquid. okay, लेकिन अगर हम इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कर दें तो क्या होगा? मान लीजिए 36 ग्राम आप 100 ग्राम वाटर में साल्ट डिजॉल्व किए हैं, लेकिन उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर रखे हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री कर दें और उसी सॉल्यूशन को, तो क्या होगा? तो जो साल्ट ज़्यादा डिजॉल्व है वो अब और कम डिजॉल्व हो जाएगा और नीचे कुछ साल्ट बैठ जाएगा ना। देखिए, इफ़ वी कूल दिस हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, तो अब क्या होगा? दिस एक्सेस ऑफ साल्ट अगेन सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर। अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन गर्म किए हुए हैं आप और उसमें 1 ग्राम एक्सेस डिजॉल्व कर दिए साल्ट, और फिर वो हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम कूल, then what will happen? excess 1 ग्राम ऑफ साल्ट विल बी सेटल डाउन। अब साल्ट जो है नीचे बैठ जाएगा, एक्सेस जो आपने ज़्यादा गर्म करके किया था। इसी तरह घर में देखते होंगे चाशनी बनाया जाता है रसगुल्ले का, तो उसको हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा शुगर उसमें डिजॉल्व हो जाता है, आपने देखा होगा ना। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा हो जाता है तो कुछ शुगर नीचे भी बैठ जाता है। इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट will be increased when temperature is increased and solubility of salt will be decreased when temperature is decreased. okay, ये हम हायर क्लास में और पढ़ेंगे। okay, तो above activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in a water on heating। ज़्यादा गर्म करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में साल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं। if we cool the saturated solution, dissolved substances settle down in the solution. okay, so substances settle down in solution. water dissolve different substances in different amount। मान लीजिए 36 ग्राम 36 ग्राम ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, बट इट इज़ नॉट 36 ग्राम ऑफ शुगर। 36 ग्राम शुगर भी नहीं डिजॉल्व होगा, शुगर का डिजॉल्व होने की कैपेसिटी अलग होगी। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और फिर हम डिस्कस करेंगे अगले लेसन में। ये सेकेंड पार्ट है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।